آج ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے نقش ناد علی کبیر۔ بہت زبردست عمل ہے، بہت خاص نقش ہے، تمام جسمانی اور روحانی امراض کے لیے پیر با ہدف ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناد علی کے بارے میں، ناد علی وہ خاص عظیمت ہے جس کا نزول مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں نزول ہوا، اور یہ تمام جو شیطانی معاملات ہیں، جتنے خطرات ہیں، ان تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ یہ ایک ایسی عظیمت ہے کہ جس کی بدولت لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں شیطانی آفات و بلیات سے، شر سے، شرار سے، جادو ٹونوں سے، ارواح خبیثہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام عالم کا رب ہے اور تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تاجیہ روحانی سینٹر میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان خلیفہ بابا حکیم محمد ذیشان تاجی آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ میری طرف سے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے نقش ناد علی کبیر۔ بہت زبردست عمل ہے، بہت خاص نقش ہے، تمام جسمانی اور روحانی امراض کے لیے پیر با ہدف ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناد علی کے بارے میں، ناد علی وہ خاص عظیمت ہے جس کا نزول مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں نزول ہوا، اور یہ تمام جو شیطانی معاملات ہیں، جتنے خطرات ہیں، ان تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ یہ ایک ایسی عظیمت ہے کہ جس کی بدولت لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں شیطانی آفات و بلیات سے، شر سے، شرار سے، جادو ٹونوں سے، ارواح خبیثہ سے۔ اس کے علاوہ جو ضدی شیطانی امراض ہیں، ان تمام امراض کے لیے ناد علی پیر با ہدف ہے، اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ ناد علی کے عملیات کے اندر جو اصل میں بات ہے وہ اس کی تدبیر کے اوپر ہوتا ہے معاملہ، کہ آپ اس کو کس تدبیر سے استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے اپنے چینل کے اوپر ناد علی کے جتنے اعمال ڈالے وہ تمام اعمال ناد علی صغیر کے تھے۔ الحمدللہ آج پہلا عمل ناد علی کبیر کا پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسا عمل کہ اس سے پہلے آپ نے یہ نقش کہیں نہ کتابوں میں دیکھا ہوگا، نہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ صدری اعمال میں سے ہے۔ یہ ایک ایسا نقش ہے کہ جو آپ کے تمام جسمانی امراض کا خاتمہ کرے گا، آپ کے تمام جو روحانی آپ کے مرض ہیں، امراض ہیں، اس کا خاتمہ کرے گا۔ روحانی امراض کے اندر بالخصوص جادو، اور ایسا جادو جو کسی عمل سے نہ کٹتا ہو، کسی اتارے سے ختم نہ ہوتا ہو، کسی تعویذ سے اس کا جادو کے اندر کسی طرح کا رد و بدل نہ ہوتا ہو، تو ایسا ڈھیٹ قسم کا جادو الحمدللہ اس نقش کی برکت سے نیست و نابود ہوگا، اور آپ سکون کا سانس لے سکیں گے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے، اکثر ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں 20 سال 25 سال پرانا جادو ہے، اور اس جادو کی کاٹ کے اندر ان کی آدھی زندگی گزر گئی، لیکن وہ جادو کی کاٹ نہیں ہو سکی۔ کیونکہ جو عاملین حضرات ہیں
بعض औक़ात वो भी इसके काट कर के थक जाते हैं। कुछ जादू इस किस्म के होते हैं, जैसे कि अघोरी जादू, तंत्र विद्या का जादू, होलकानी जादू। ये इस तरह के जादू होते हैं कि बहुत ढीठ होते हैं। इसमें मरीज़ भी थक जाता है इलाज करवा करवा कर, और आमलीन हज़रात भी हाथ जोड़ देते हैं कि अब हमारे बस से बाहर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जादू की तोड़ के लिए ये जो नक्श है हमारा, ये एक ऐसा नक्श है कि पहला ही नक्श अल्हम्दुलिल्लाह जादू का खात्मा कर देगा। इसके अलावा जो अरवाह खबीसा होती है, जिन्नात, जो शर्री जिन्नात होते हैं, बाज़ औक़ात देखा गया है कि कुछ इस तरह के जिन्नात होते हैं कि जो इंसान के दिल और दिमाग के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह का कब्जा कि इंसान का जो दिमाग है वो हैंग हो जाता है, सुन्न हो जाता है। लोगों के अंदर सोचने की, फैसला करने की जो सलाहियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। थक जाते हैं लोग। बाज़ औक़ात लोग सो रहे होते हैं लेकिन उनका दिमाग जाग रहा होता है, जिस्म सो रहा होता है। तो ये जो कैफ़ियत है, ये कैफ़ियत जब होती है कि जब गैर मरई मखलूक इंसान के दिमाग के ऊपर मुसल्लत हो जाती है, तो फिर इंसान ना फैसला करने की पोजीशन के अंदर होता है, ना दीगर किसी किस्म का कोई काम करने की पोजीशन में होता है। अगर वो कारोबार कर रहा होता है तो उसको कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा होता है। दीगर सफ़र वगैरह की कोशिश कर रहा होता है तो उसमें नाकामी हो रही होती है। तो इस तरह की नाकामियाँ बाज़ औक़ात वो शख्स सोचता है कि शायद मेरा मुक़द्दर बन चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। आमलीन हज़रात मुख्तलिफ़ बातें बताते हैं, मुख्तलिफ़ अमाल करते हैं, वज़ाइफ पढ़ने के लिए दे देते हैं, लेकिन कोई तदबीर कारगर साबित नहीं होती और नतीजा सिफ़र होता है। इससे बाज़ औक़ात लोगों का जो ईमान है वो भी उठ जाता है, रूहानी इलाज के ऊपर से, वज़ाइफ के ऊपर से, आयात के ऊपर से। लोग इस हद तक मायूस हो जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मायूसी इंसान को कुफ़्र के आते में ले जाती है। तो अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह के कलाम से कभी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। आज ये हमारा अमल बयान करने का मकसद लोगों की मायूसियों को ख़त्म करना है, लोगों की परेशानियों का ख़ात्मा करना है, लोगों को सीधे रास्ते पे लाना है, लोगों को उनकी तकालीफ से निजात दिलाना है। अब हम आते हैं अमल की तरफ कि आप इस अमल से, इस नक्श से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका जो तरीक़ेकार है वो इंतहाई सादा है, इंतहाई सादा। आपने ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब की मदद से ये 21 अदद आपने नक्श तहरीर करने हैं, लिखने हैं। अगर आप कागज़ पे ना लिख सकें तो आप कांच की जो चीनी की प्लेट होती है सफ़ेद रंग की, उसके ऊपर लिखें, और लिखने के बाद इसको पानी से धो के रोज़ाना सुबह निहार में एक तावीज़ मुतासिरा शख्स को पिलाएं। अगर आप खुद मुतासिर हैं तो आप अपने लिए खुद ही अमल कर सकते हैं। 21 रोज़ तक मुतवातिर आपने एक अदद नक्श पीना है। इसके अलावा एक अदद नक्श आपने लिखना है काले रंग की स्याही से। नक्श लिखने के बाद उस पे कोई अच्छा देसी इत्र हल्का सा मामूली सा लगाएं, ताकि जो आपका नक्श है वो खुशबूदार हो जाए। उसके बाद आपने 21 मरतबा नादे अली कबीर पढ़कर इस नक्श के ऊपर दम करना है। दम करने के बाद इस नक्श को आपने तय करना है और इसको प्लास्टिक कोटिंग करना है। फिर आपने चमड़े के अंदर सिलवाना है लेदर में। वो तावीज़ आप खुद भी पहन सकते हैं अगर आप मुतासिर हैं, या अगर आप किसी का इलाज मुआलजा कर रहे हैं तो उस शख्स को पहनाएं। गले में भी पहना सकते हैं, सीधे हाथ के बाजू पे भी पहना सकते हैं। गुस्ल के टाइम इस नक्श को उतारना ज़रूरी है। नापाकी में, नजिस हालत में या गुस्ल के टाइम इस नक्श को उतार दें, फिर गुस्ल करके आप दोबारा पहन लें। नक्श जो आपने लिखना है वो बावजू हालत में लिखना है। बावजू होना शर्त है, वक्त की इसके अंदर कोई कैद नहीं है। अमल करने से पहले हज़रत अली करमुल्लाह वजह, मौलाए कायनात की नज़र दिलवाइए, और उस नज़र के अंदर ये अल्फाज भी कहें कि इस नादे अली कबीर के जो रूहानी मौकिलात हैं, हमारी तरफ से ये नज़र उनके लिए भी है।
तो इस तदबीर से आपने सबसे पहले नज़र करनी है, फिर आपने नकूश तैयार करने हैं, फिर आपने जो नक्शे पहनने वाला वो तैयार करना है, फिर आपने या तो खुद इस्तेमाल करना है या फिर वो जो पेशेंट है आपका, आप उसको इस्तेमाल करवाइए। तो इंशाल्लाह 21 रोज़ के अंदर अंदर अरवा खबीसा का भी खात्मा होगा, जादू टोने का भी खात्मा होगा, आपके ऊपर जो बंदिशें हैं वो भी ख़त्म होंगी, जो रुकावटें हैं, जो दुश्वारियाँ आपको दरपेश हैं, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम दुश्वारियों से आपको आज़ादी हासिल होगी और आप सुख का सांस लेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी तबीयत के अंदर हल्कापन आ गया है, आपके मिजाज के अंदर तब्दीली है, आपका जहन खुलता जा रहा है और जो भी आपकी रुकावटें, आपकी मुश्किलात थी, अल्लाह ताला के हुक्म से उसके अंदर आसानियाँ पैदा हो रही हैं। तो बहुत ज़बरदस्त अमल है, बहुत ख़ास अमल है, हमारा आज़मूदा है, इसको लाज़मी इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप हमें दुआएँ देंगे और जिन लोगों को आप इस्तेमाल कराएँगे वो लोग भी आपको दुआएँ देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।